السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے ایمرجنگ ایشیا کپ کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کم لاگت اور ماحول دوست توانائی کے لیے متبادل ذرائع کا فروغ۔ 1200 میگا واٹ کے چشمہ 5 ایٹمی بجلی گھر کا سنگ بنیاد۔ منصوبہ 3 ارب 48 کروڑ ڈالر لاگت سے مکمل ہوگا۔ چین نے ہر مشکل وقت میں عظیم دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ اقتصادی راہداری منصوبے پر ایک بار پھر کام زوروں پر ہے۔ اتحادی حکومت نے صرف 15 ماہ میں تمام رکاوٹوں کو دور کیا اور معاشی بحالی کی راہ ہموار کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا میاں والی میں تقریب سے خطاب۔ قوموں کی خوشحالی میں نوجوان نسل کا اہم کردار ہے۔ ہنرمندی کی تعلیم دور حاضر میں ترقی کی کنجی ہے۔ تعلیم، روزگار اور صحت ہر کسی کا حق ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب۔ وظائف کے لیے 10 کروڑ روپے اور 4 بسیں دینے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایران کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ عسکری اور سول قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گرین کا دورہ۔ یوب میں دہشت گردوں کے حملے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ سپہ سالار کا جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت۔ آرمی چیف کی سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت۔ بلند حوصلے اور عزم کی تعریف۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانوں اور آزادانہ نقل و حمل پر شدید تحفظات ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا بھی باعث تشویش ہے۔ امید ہے کہ افغان و بری حکومت اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ جوب اور سوئی میں دہشت گرد واقعات میں جام شہادت نوش کرنے والے شہداء مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی دی۔ نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ عسکری حکام، شہداء کے عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں انتخابی مہم کے آغاز کا اعلان۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کے تمام حلقوں میں پارٹی امیدوار میدان میں اتریں گے۔ قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف کے بھرپور استقبال کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ۔ ایک فتنے نے ملکی سیاست کو تقسیم کیا۔ انتقامی سیاست میں جھوٹے مقدمات اور قومی ترقی کے عمل کو نقصان پہنچایا۔ 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی سیاسی نہیں، شہداء کی بے حرمتی اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ آبادی کے مسائل قانونی نقطہ نظر سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ بے ہنگم اضافے پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر چھوڑنا درست نہیں۔ معاشرہ مسائل کا حل تلاش کر کے ریاست کی معاونت کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا قومی کانفرنس سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مودی حکومت کے اونچے ہتھ کنڈے۔ پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی خصوصی کمانڈ یونٹ کے دستے تعینات۔ علاقے میں خوف اور دہشت کا ماحول۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال۔ حریت قیادت کا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری سے سنگین صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یورپی پارلیمنٹ کا بھارتی ریاست منی پور کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ مذمتی قرارداد منظور۔ متاثرہ علاقوں میں بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ شفاف تحقیقات کے لیے آزاد مانیٹرز کو اجازت کا مطالبہ۔ بی جے پی رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات کی بھی سخت الفاظ میں مذمت۔
यूक्रेनी इलाकों पर रूस के हमले, यूक्रेन का 20 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी सदर की यूक्रेन को हथियारों की फराहमी पर तनकीद। हथियारों की फराहमी से मैदान जंग की सूरत हाल नहीं बदल सकती। यूक्रेन की नेटो रुकनियत दुनिया को मजीद गैर महफूज कर देगी, सदर व्लादिमीर पुतिन। भारत में बारिशों और सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। दरियाए जमुना में पानी की सतह इंतहाई बुलंद, सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल। वजीर आला और वज़रा की रिहाइश गाहें, सुप्रीम कोर्ट, लाल किला और सेक्रेटेरिएट भी सैलाबी पानी की जद में। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। कश्मीर, खिता पोटोहार, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारखान, मूसाखेल, कोहलू, लोरालाई, योब, कल्लात और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में भी बूंदाबांदी मुतवक्को। कोलंबो में इमर्जिंग एशिया कप, दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नेपाल को 4 विकेटों से हरा दिया। शाहीन्स ने 180 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। शाहनवाज धानी 5 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप विमेन फाइनल कल खेला जाएगा। ट्यूनिस की ओनस जैबियोर और जमहूरिया चेक की मार्किटा वेंड्रोसोवा मद्दे मुकाबिल होंगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, मुतबादिल तवानाई ज़राए को तरक्की देने की पॉलिसी के तहत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 1200 मेगावाट के चश्मा 5 एटमी बिजली घर का संगे बुनियाद रख दिया। मियांवाली में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने सिर्फ 15 माह में तमाम रुकावटों को दूर किया और माशी बहाली की राह हमवार की। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट C5 यूनिट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मनसूबा हुकूमत की सस्ती तवानाई की पॉलिसी का तसलसल है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 बरस से इल्तिवा के शिकार इस मनसूबे को आइंदा 7 से 8 साल में वक्त से पहले पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। For nuclear energy cooperation between Pakistan and China goes back to 30 years. After a pause of many years, CPEC is going to be again in full cry and conclude this agreement of Chashma C5. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों के लिए मौसर जवाब है। गुज़श्ता 4 माह में चीन की हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी दबाव से बचाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है। By the grace of God Almighty, not only the risk of potential default has been completely averted through team efforts, untiring efforts. Around about $4.5 billion were deposited in the State Bank of Pakistan by our brotherly countries Saudi Arabia and UAE, and of course $1.2 billion from IMF as its first tranche of $3.5 billion. तकरीब से खिताब में चीनी वफ्द की सरबराह बंग जंगशेवी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन पुरअमन जोहरी तवानाई के हसूल के लिए ताउन कर रहे हैं। C5 यूनिट का संग बुनियाद 2 तरफा ताउन की एक मिसाल है। चेयरमैन चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन यू चिया ने कहा कि चश्मा पाकिस्तान और चीन के इश्तराक का पहला न्यूक्लियर मंसूबा है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर ने कहा कि चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट पैदावार के लिहाज से मुल्क के बड़े मंसूबे में शामिल है, जिससे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह ने वीडियो पैगाम में मंसूबे पर मुबारकबाद देते हुए इससे जोहरी तवानाई की आलमी एजेंसी के लिए महफूज मंसूबा करार दिया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 5 का संग बुनियाद रखा।
इस मंसूबे से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तालीम, रोजगार और सेहत हर किसी का हक है। कौम की खुशहाली में नौजवानों का बड़ा किरदार है। मौजूदा दौर में फ़नी तालीम तरक्की की कुंजी है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कही। तफसील जानेंगे शाहरुख शफी की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इनकलाबी कदम और वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्किल्स प्रोग्राम के बायस पाकिस्तान का नौजवान तरक्की की दौड़ में हम कदम है, क्योंकि हुनर के बगैर तरक्की का सफर मुमकिन नहीं। इसी अज़म को लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रखा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि तालीम के हुसूल के लिए अमीर और गरीब में तफरीक नहीं होनी चाहिए। तालीम सबका हक है, ये किसी एक तबके का हक नहीं है। स्किल डेवलपमेंट जो है ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, चाहे वो तालीम हो, इलाज हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे गुज़श्ता अदवार में 4,50,000 से ज़ायद बच्चों को मेरिट पर वज़ाइफ दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर हमें तरक्की करनी है तो किसी भी मसले को पाँव की जंजीर नहीं बनने देना। उन्होंने नौजवानों के वज़ाइफ के लिए 10 करोड़ रुपए और तलबा और तालबात के लिए 4 एयर कंडीशन बसों का भी ऐलान किया। कायद का और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि अमीर और गरीब के दरमियान कम से कम इन मैदानों में कोई तफरीक ना हो। अगर हम मिलकर मुसम्मम इरादे के साथ अगर हम इस तरफ चल पड़ेंगे तो यकीन करें कि तालीम पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आम होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि नौजवान हमारा सरमाया है, इनको हुनरमंद बनाए बगैर तरक्की का सफर नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मार्केट में फनी तालीम हासिल करने वाले के लिए रोजगार के मौके दीगर की निस्बत 70% जायद हैं। 4 लाख बच्चे हमारे इस प्रोसेस से जॉब वो ले चुके हैं। स्किल जो एजुकेशन है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट, हमारे बच्चों को यही एक रास्ता है, दुनिया के नौजवानों को यही रास्ता है। मुआवने खुसूसी नौजवान शिजा फातिमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा 1 लाख बच्चे इस साल खुसूसी प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए नौजवानों के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 200 ई लर्निंग कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तलबा की काविशों को सराहा और उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाली तालबा सिद्रा गुल और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अरसलान का खुसूसी जिक्र करते हुए उनकी खुसूसी काविश पर उन्हें शाबाश दी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ सूबाई वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने लाहौर में मुलाकात की। उन्होंने मजमूई सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म से तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ईरान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ इस दौरे में ईरान की अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्हें जोब में दहशतगर्द हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस वाक़े में जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH कोयटा का भी दौरा किया और ज़ख्मी जवानों की अयादत की। उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहते हुए कहा कि मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में कलअदम TTP की महफूज पनागाहों और उनकी आज़ादाना सरगर्मियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़गान शहरियों का मुलव्वस होना भी बाइस तशवीश है। उम्मीद है अफ़गान उबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे पर हकीकी मायनों में अमल करते हुए अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। जबकि नाज़रीन, जोब गैरिजान पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने और सुई में फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के बहादुर जवानों को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा के जसद खाकी को पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुक्काम, शहदा के अजीज़ व अकारिब और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان خود مختار دولت فنڈ کے قیام سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس فنڈ کے قیام کا مقصد حکومت پاکستان کے اثاثہ جات کی بین الاقوامی معیار کے مطابق نگرانی اور ان سے زیادہ استفادہ کرنا ہے۔ شرکا نے فنڈ سے متعلق تکنیکی پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا اور مزید کارروائی کے لیے مسودہ وزارت قانون کو ارسال کر دیا۔ اور مسلم لیگ نون نے پنجاب میں انتخابی مہم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں پارٹی امیدوار میدان میں اتریں گے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک فتنے نے ملکی سیاست کو تقسیم کیا، انتقامی سیاست میں جھوٹے مقدمات بنائے اور قومی ترقی کے عمل کو نقصان پہنچایا۔ مزید تفصیل محمد سفیان سے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے۔ پورے پنجاب میں بھرپور انداز سے الیکشن مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر حلقے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بھرپور انداز سے جو ہے وہ انتخابی عمل کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھے گی اور تمام صوبائی اور قومی حلقے جن کی تعداد تقریباً 443 ان تمام حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ موجود ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کے فتنے نے اس ملک کو ایک ایسے بحران سے دوچار کیا جس میں عوام اور ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ اس نے اس ملک کے نوجوان کو جو ہے وہ گمراہ کیا اور اس نے اس ملک کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہو کے اس ملک کو جو ہے وہ ایک ایسے بحران سے دوچار کرنے کی کوشش کی جس بحران کے بعد شاید ہمیں اپنا وجود جو ہے وہ قائم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون اس الیکشن کے بعد ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی اور عوام کو غربت سے نکالے گی۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے تنظیمی اجلاس میں تمام حلقوں سے پارٹی امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا اور پارٹی تنظیموں سے تمام حلقوں سے پارٹی امیدواروں کی فہرست طلب کی۔ اجلاس میں قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے لیے بھرپور تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ تعلیم، صحت اور آبادی کے مسائل کے حل کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ آبادی اور وسائل کے موضوع پر اسلام آباد میں کانفرنس کی تفصیل اعجاز حسین سے جانیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ شراکت داری سے ہی مسائل سے نکلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں بے ہنگم اضافے کے باعث نوکریوں کے حصول میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ آبادی کو مفید بنانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ نوکریاں نہ ملنے پر مقدمات سپریم کورٹ تک آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نوجوانوں کو قابلیت اور ہنر دینا ہوگا تاکہ وہ ملک اور بیرون ملک خدمات انجام دے سکیں۔ Narrative today is not population control. It is a concern for the population to be productive, so that they can earn their livelihood and contribute to the society and the community. And for that, the requirement is education. چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز نوجوانوں کو ہنر فراہم کرتے تھے، لیکن نہ جانے انہیں کیوں ختم کر دیا گیا۔ We cannot devise these solutions. It will be people like yourselves who will have to come forward. The time today requires the people of Pakistan to come forward and offer solutions. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی سیکریٹری رفت انعام بٹ نے کہا کہ آبادی میں تیزی سے اضافے سے وسائل کی تقسیم میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آبادی سے متعلق اقوام متحدہ فنڈ کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ وہ پاکستانی حکومت اور دوسری شراکت داروں سے مل کر تولیدی صحت اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 2 روزہ کانفرنس میں آبادی اور وسائل سے جڑے موضوعات پر بحث کے لیے 5 مختلف گروپس تشکیل دیے گئے ہیں۔ ان گروپس میں آبادی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ، آبادی اور اس کے اثرات، معاشی اور سماجی حکمت عملی میں ہم آہنگی، خواتین کے حقوق اور انہیں معاشی طور پر بااختیار بنانے کے حوالے سے موضوعات پر بحث ہوگی۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹس بھی ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव के मुकदमे में गिरफ्तार तैयबा राजा और रुबीना खान समेत 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी, जबकि 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर वकला से मजीद दलाइल तलब करते हुए केस पर मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज एजाज अहमद बुटर ने केस पर समाअत की। 9 मई की शरपसंदी में मुलव्विस शरपसंद सईद आलम के भाई ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अपने भाई की गुंडागर्दी पर अफसोस का इजहार किया है। अपने एक बयान में शरपसंद के भाई ने कहा है कि मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। जो हुआ है सही नहीं हुआ। फौज हमारी शान है और हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मैं सैद आलम का भाई हूँ। इस वाक़े का हम बहुत शदीद मजम्मत कर रहे हैं। ये 9 मई में जो किया हुआ ये सही नहीं है। इदारों के पीछे बात कर रहे हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं और इदारे हमारा शान है, हमारा मुल्क का हिफाजत कर रहे हैं। जो इदारों के पीछे बातें कर रहे हैं उसको पकड़ना चाहिए। बलूचिस्तान के शहदा फोरम के ज़ेरे इंतज़ाम कोयटा में शहदा की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ साथ शहदा के लवाहिकीन ने भी शिरकत की और शहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि हमारे शहदा की याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनकी कुर्बानियाँ हमें एक बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देती हैं। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने इस अज़्म का इयादा किया कि शहदाए पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए वतन अजीज़ पर आने वाली हर आंच पर बहादुरी से लब्बाइक कहेंगे और अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेख नहीं करेंगे। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी को तहकीकात में तब्दील कर दिया। नैब की जानिब से जारी नोटिस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 17 जुलाई को तलब कर लिया गया है। नोटिस के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुतल्लिका दस्तावेजात हमराह लाने और 10 बजे इस्लामाबाद में नैब रावलपिंडी की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत एडिशनल एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने अदालत के रूबरू पेश होकर इस्तदा की कि इस केस में दलाइल अमजद परवेज ही देंगे। आज वो निजी मसरूफियत के बिना पर पेश नहीं हो सकते। इस्तदा है कि समाअत कल तक मुलतवी कर दी जाए। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और डेरा गाजी खान से साबिक रुकने कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद खान लगारी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए PTI से राहें जुदा कर ली हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI के रियासत मुखालिफ बयानी के साथ मजीद नहीं चल सकते। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी ज़र मुबादला की सूरत में मुल्की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर नसर शाहिद की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बासलाहियत लोग और मुल्क का फ़ख्र हैं। वतन अजीज़ की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में उनका अहम किरदार है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया कि समंदर पार पाकिस्तानी दयार गैर में पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम करें।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा और वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदर अफजल भट्ट से मुलाकात की और उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सीनियर सहाफ़ी खलीक कियानी की वालिदा के इंतकाल पर फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वालिदा का कोई नेमुल बदल नहीं, ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वालिदैन के साथ बहारें होती हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूमैन के दर्जात बुलंद फरमाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि लीला ताजेलम दो रोया शाहराह का तामीराती काम रोकने से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि शाहराह की तामीर इलाके के मकीनों का देरीना मुतालबा था। तामीराती काम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं, मंसूबा ज़रूर मुकम्मल होगा। नाज़रीन, मुल्क के मौजूदा माशी मसाइल से निपटने और मईशत का पहिया तेज़ करने के लिए IMF से मुआहिदा नागुज़ीर था। मुआहिदे की मंजूरी से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। रिपोर्ट कर रही हैं कराची से नौरीन आसिफ। मुल्क को मुआशी तौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए IMF से $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा नागुज़ीर था। माहिरीन के मुताबिक मुश्किल फैसलों से ही मुल्क को मुआशी खुद इन्हिसारी की जानिब ले जाया जा सकता है। $1 अरब इस वक्त पाकिस्तान को कल मिला है, उससे यकीनन जो डॉलर है उसमें उसके रेट में कमी वाक़ई होगी और हमारी जो करेंसी है पाकिस्तानी जो रुपया है उसमें एक मजबूती देखने में आएगी। जो हमारे कर्जे का तनाजुब है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। फिंच ने हमारी रेटिंग इंप्रूव की है, इंटरनेशनल मैगजीन ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के लिए पॉजिटिवली कोट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है ना लोकल इन्वेस्टर पे भी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर से भी, और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। जितने भी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के दूसरे सोर्सेज होते हैं जो दो तरफा हों या मल्टीलैटरल हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ये सब भी अब जो है हमें जो भी हमारे प्रोग्राम्स पाइपलाइन में हैं वो रिलीज करने को तैयार होंगे। IMF से मुआहिदे के तहत पहली किस्त मिलने के बाद मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में तेजी आ रही है। माहिरीन का कहना है कि इक्तिसादी पॉलिसियों का तसलसल मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए निहायत जरूरी है, जिससे मुल्क में सरमायाकारी को फरोग हासिल होगा। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में शहरियों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी अवाम को मज़ीद मज़ालिम का निशाना बनाने के लिए पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के खुसूसी कमांड और यूनिट के दस्ते मकबूजा कश्मीर में तैनात कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक CRPF को कोबरा कमांडो बटालियन दस्ते को श्रीनगर के मुख्तलिफ कैंपों में तरबियत फराहम की जा रही है। ये कमांडो गुरीला और जंगलों में कार्रवाइयों के माहिर हैं, जिन्हें भारत में नक्सल बागियों की तहरीक को कुचलने की तरबियत दी गई है। श्रीनगर में तैनात CRPF के एक अफसर ने तस्दीक की है कि कोबरा कमांडोज को शहरी और देही इलाकों में कार्रवाइयों के लिए तरबियत दी जा रही है। काबिज इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा अमीर हमजा पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करके उन्हें बारामूला की डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया है। काबिज इंतजामिया ने अमीर हमजा को मकबूजा इलाके में आज़ादी पसंद और भारत मुखालिफ सरगर्मियों में सजा देने के लिए उन पर काला कानून लागू किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत की हरदर्मी तनाज़ कश्मीर के हल और पायदार अमन के क़याम में रुकावट है। आलमी बिरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। जबकि उधर यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारतीय रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की है। यूरोपीय पार्लियामेंट में शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में 3 मई से जारी फसादात पर बहस हुई। इजलास में एक करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें मणिपुर में तशद्दुद, जानी नुकसान और अमलाक की तबाही के साथ साथ BJP रहनुमाओं के कौम परस्ताना बयानबाजी की भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। करारदाद में भारतीय हुकाम से ये मुतालबा किया गया कि मुतासरा इलाकों में बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और आज़ाद मॉनिटर्स को तहकीकात की इजाज़त दी जाए। रियासत मणिपुर में 3 मई से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में 150 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में 200 से ज़ायद गिरजाघरों को भी नजर आतिश किया गया है, जबकि 60,000 से ज़ायद अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। और नामवर बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेराल्ड के नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का भांडा फोड़ दिया गया है। और नामवर जरीदे ने अपने जुलाई के शुमारे में मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, मजहबी तकसीम, नस्ल परस्ती और गिरते सहाफती मयार पर तशवीशनाक सवालात उठा दिए हैं। ब्रिटिश हेराल्ड के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर मोदी की मुजरिमाना खामोशी की बुनियादी वजह इंतहा पसंद अक्सरियत की खुशनुदी है।
हर दिन मरने से अच्छा रात को चैन से नींद नहीं सो पा रहे, हमें ये नहीं पता कि कल उस कंपटीशन में हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। If you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. गंधारा सिंपोजियम में शिरकत के लिए आने वाले बुद्ध मत के पैरोकारों और भक्तों ने अपने ममालिक की जानिब रवानगी से कबल इस्लामाबाद म्यूजियम का दौरा किया। गंधारा टूरिज्म के बारे टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में बुद्ध मत सयाहत के वसी मौके मौजूद हैं। मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत रिलीजियस टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गंधारा सिंपोजियम में आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के भक्तों ने पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को सराहा और अपनी तजावीज़ भी दी। जब ये आए तो उनके पास परसेप्शन और था, आज ये यहाँ से पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से इतने सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं कि अपने फेसबुक के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया कि पाकिस्तान इज सेफ, वी रिक्वेस्ट ऑल द Buddhist people that please visit the places of Buddha। मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया और म्यांमार के भक्तों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सकाफती तनव्वुर पाया जाता है। यहाँ बुद्ध तहजीब व तमद्दुन से मुतल्लिका हजारों मकामात हैं। बुद्ध मत के मानने वालों को पाकिस्तान का दौरा जरूर करना चाहिए। I think it is the most important step to the open to world to Pakistan. Pakistan possess rich cultural heritage and especially the Gandhara Buddhist heritage in Texila and Peshawar and here in Islamabad museum. Pakistan have around like 6,000 Buddhist sites, so please come to visit Pakistan. बैरिनो ममालिक से आए हुए भक्तों ने इस्लामाबाद म्यूजियम का भी दौरा किया और यहाँ पे मौजूद बुद्ध तहजीब के विरसे का जायजा लिया। वजीर मुमलिकत डॉक्टर रमेश कुमार ने बुद्ध मत के पेशवाओं और भक्तों को अलविदा किया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गंधारा टूरिज्म से मुतालिक टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मजहबी सियाहत पर होने वाले सिंपोजियम इंतहाई कामयाब रहा। मजहबी सियाहत के फरोग से पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस दुनिया भर में उजागर होगा। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि गंधारा टूरिज्म के लिए वेब पोर्टल कायम कर दिया गया है। वेब पोर्टल के जरिए वीज़ा 7 दिनों में जारी होगा और होटल्स की बुकिंग भी इसी पोर्टल के जरिए होगी। जो मॉन्क्स हैं उनके अगर आप सोशल मीडिया ग्रुप्स देखें, बहुत हाईलाइट हो रहा है। कंबोडिया को मैंने कहा वो आए, नेपाल को कहा वो आए, श्रीलंका को कहा वो आए, म्यांमार को कहा वो आए, मलेशिया को कहा वो आए, चाइना को कहा वो आए, साउथ कोरिया को कहा वो आए। यूएस डिप्लोमेट भी थे, आपके ब्रिटिश डिप्लोमेट भी थे। काफी डिप्लोमेट्स तक्षशिला डिक्लेरेशन के ऊपर मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ ये अथॉरिटी बनेगी, आप इन चीजों को सबको फार्मलाइज देखेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है, जबकि दरिया सतलुज में सैलाब दरमियाने से निचले दर्जे पर आ गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सैलाबी इलाकों का दौरा किया। अहवाल जानिए ताहिर जाफरी की रिपोर्ट में। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गंडा सिंहवाला के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद और अखराज 70,000 क्यूसिक से कम है। दरिया सतलुज में हेड सलमानकी के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। चंद रोज से दरिया रावी, चनाब और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गंडा सिंहवाला में मुल्हिका इलाकों का दौरा किया और पानी के बहाव का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ज़ेरे आब इलाके भिक्की में मुतासरीन के मसाइल सुने और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। मोहसिन नकवी ने नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत करते हुए कहा कि रिलीफ और मेडिकल कैंप्स की तादाद में इजाफा किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल की 24 घंटे निगरानी की जाए और तमाम महकमों को बाखबर रखा जाए। पीडीएम कंट्रोल रूम तमाम दरियाओं में पानी के बहाव की निगरानी कर रहा है। कसूर में गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी के बावजूद मुतासरा देहातों का ताहाल जमीनी राब्ता मुनक़ते है। जिला इंतजामिया मुतासरा देहात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है, जबकि मुतासरीन में खाना और दीगर इमदादी सामान की तकसीम जारी है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि कौम ने देख लिया है कि फ़ौरन फंडिंग पर पलने वाला गैर मुल्की एजेंट कौन है। अगर 9 मई के मुल्ज़िमान और उसकी मनसूबाबंदी करने वालों को करार वाकई सज़ा ना दी गई और रियासत पर हमला करने वालों को निशान इबरत ना बनाया गया तो तारीख हमें मुआफ़ नहीं करेगी। शेखुपुरा में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर इसराइल को क्यों तकलीफ हो रही है। इलेक्शन का ऐलान होते ही मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। इस मौके पर करामत विर्क ने तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं, मुल्क भर में वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुली कचहरी लगा रहे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म शिकायत सेल में मौसूल होने वाले साइलिन की शिकायत का इज़ाला किया जाता है। लाहौर में खुली कचहरी के मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को उनकी दहलीज पर फौरी इंसाफ की फराहमी तरजीह है। अब तक 9050 में से 6500 शिकायत का इज़ाला किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर ने लाहौर में तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची से मुतल्लिका हुकाम को राबता करने की हिदायत की। मुतल्लिका पुलिस अफसर ने मौके पर पहुँच कर तफ्तीश की और वफाकी वज़ीर को बताया कि मुतासरा बच्ची पर तशद्दुद की शिकायत हकीकत पर मबनी नहीं। बच्ची ने अपने एक वीडियो बयान में इस बात को तस्लीम भी किया है। हुकूमत और पाक फौज के मुश्तरका ताउन से ज़राअत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबे का आगाज़ किया गया। पाक फौज के इस इनकलाबी इक़दाम के बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जदीद ज़राअत के फ़रोग़ और बंजर ज़मीनों की आबादकारी के लिए हुकूमत और पाक फ़ौज के मुश्तरका मंसूबे के आगाज़ पर अवाम का कहना है कि हमारे इदारों की तरफ से लिया गया ये फैसला इंतहाई खुश आइंद है। हम हुकूमत के इस इक़दाम की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़ौज और हुकूमत मिलकर जो बंजर ज़मीनें आबाद कर रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशहाल बात है। अगर यहाँ पे ज़राअत का काम होता है तो ये मुल्क की खुशहाली के लिए एक बेहतर स्टेप है। दैट इज़ बेटर फॉर अस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो इनिशिएटिव लिया गया है हमारे इदारों की तरफ से, ये इंतहाई खुशहाल बात है। ज़राअत के मामले में देखा जाए तो पॉजिटिव इनिशिएटिव है। मुल्क की माशियत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है पाक फौज का। मैं दिल से सलूट करता हूँ पाक फौज को कि जो ऐसा फैसला लिया है उन्होंने। जो मिल के बंजर ज़मीनों का आबादकारी का मंसूबा कर रही है वो काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। और करे फौज ये ताकि गरीबों को इसमें मदद मिले। फौज भी जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी और ये आवाम के लिए बेहतरीन इक़दाम। हुकूमत ने ज़रूरी तरक्की के लिए जो इक़दाम उठाया है वो काबिल तहसीन है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। हम हुकूमत के इस मंसूबे में शान बशाना करें, आम को फायदा पहुँचाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है। हुकूमत ने अच्छा इक़दाम बनाया है। बंजर ज़मीनों की आबादकारी के आगाज़ के लिए पाक फौज के इस इनकलाबी इक़दाम को सराहता हूँ। अवाम का कहना है कि ज़राअत में जिद्दत के मंसूबे से मुल्क खुराक के हवाले से खुद कफील होगा, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे। अगर इन पे काम हो जाए तो लाजिमी बात है मुल्क का भी तरक्की हो जाएगा। इससे हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आएगा। अगर ये पहले ही हम ये इनिशिएटिव ले लेते तो हमारी जो एग्रीकल्चर थी रशिया और चाइना की तरह हम ग्रो कर लेते। ज़रूरी शोबे को तरक्की देने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ इक़दाम उठाने चाहिए। काबिल काश बन जाए तो हम मतलब फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। बहुत से वो ऐसे ज़मींदारी ये चीज़ें अगर हों तो यहाँ पर गरीबी भी ख़त्म हो। इसमें पाकिस्तान काफ़ी तरक्की करेगा, किसान खुशहाल होगा, ज़राअत और तिजारत में बहुत फ़रोग़ होगा। इससे लाखों एकड़ पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो आबाद होगी। अवाम के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोच रहे हैं, कुछ ज़मीन जो बंजर है उसको आबाद करें। पाकिस्तानी अवाम इस इनकलाबी इक़दाम से बहुत खुश है और उनका कहना है कि बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो जाए तो पाकिस्तानी अवाम खुद मुख्तार हो सकती है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा सफाक मुल्क इसराइल है। लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। दो मुल्कों में इंसानी हकूक की जो है वो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, एक इसराइल के अंदर और एक हिंदुस्तान के अंदर। इसराइल का ये एजेंडा कि पाकिस्तान के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत के हवाले से कवानीन ख़त्म हो, या हम जिन्स परस्ती की आज़ादी हो, यहाँ पर जिन लोगों ने फौज की इमलाक पर और तनसीबात पर हमले किए हैं उनको रिहा किया जाए, ये जाहिर करता है कि इसराइल किन के लिए पाकिस्तान में रिलीफ मांग रहा है।
پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین نور عالم خان کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا کے 210 ارب روپے سے زائد کے 53 آڈٹ اعتراضات بحث کے لیے پیش کیے گئے۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا کی آڈٹ رپورٹ 2019-20 کا جائزہ لیا جانا تھا، لیکن کورم نامکمل ہونے کے باعث اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اسلحہ لائسنس کے اجرا سے متعلق قائم قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں شہریوں کو اسلحہ لائسنس کے حصول میں درپیش مختلف مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی نے وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام کی عدم موجودگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے اراکین پارلیمان کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کے عمل تیز کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا اجلاس کمیٹی چیئرمین محسن داوڑ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں افغان شہریوں کو پاکستانی ویزوں کے اجرا، پارلیمانی وفد کے دورہ چین اور یونان کشتی واقعے میں پاکستانی حکام کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ کمیٹی نے افغان شہریوں کے ویزے کے اجرا کے عمل میں لوپ ہولز پر 2 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ قائمہ کمیٹی نے وزارت داخلہ سے انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ قومی اسمبلی کی تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی مجلس قائمہ کو بتایا گیا ہے کہ متاثرین سیلاب کو نقصان کی امدادی رقوم فراہم کی گئی ہیں۔ چیئرپرسن سائرہ بانو کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کو متاثرین کو امدادی سامان کی فراہمی کے حوالے سے پی ڈی ایم سندھ کے حکام نے بتایا کہ رکن اسمبلی شگفتہ جمانی نے مطالبہ کیا کہ سندھ کے ڈی سیز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کس طرح سامان اور پیسے تقسیم کیے ہیں۔ کمیٹی نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع سانگڑھ اور مٹیاری میں امدادی سامان کی تقسیم کی فورینسک آڈٹ رپورٹ طلب کر لی۔ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر حاجی ہدایت اللہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں فیڈرل ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے حکام کو سیکٹر G13 اسلام آباد میں 12 ارب روپے کے منصوبے کے حوالے سے تسلی بخش جواب نہ دینے پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اجلاس کو چکلالہ ہائرس اپارٹمنٹس، اسکائی لائن اپارٹمنٹس اور لائف سٹائل ریزیڈینشیا منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان کے چہرے کے موضوع پر نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ بدبسک میوزیم کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے فیسٹیول کا مقصد پاکستان کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ سالانہ ایونٹ میں مختلف فن پارے، روایتی گھریلو اشیاء اور کپڑوں پر ہاتھ سے بنائے گئے مختلف ڈیزائن نمائش میں رکھے گئے۔ اس موقع پر بیلاروسی فنکاروں نے موسیقی کے تار چھیڑے اور محفل کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ 15 اگست تک جاری رہنے والی نمائش میں پاکستانی روایتی پکوانوں کے بھی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ اور گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون لاہور خواتین ونگ کی صدر سعدیہ تیمور کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے دوران گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں مثبت سوچ، سچائی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ سعدیہ تیمور نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کا سچ اور شائستگی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو بہتر بنا کر ترقی کے ثمرات عوام کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ نیا بلدیاتی نظام حقیقی معنوں میں عوام کو نچلی سطح پر بااختیار بنائے گا اور صوبے کے ہر شہر اور گاؤں میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل نچلی سطح پر حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں فائر بریگیڈ کا بندوبست کیا جائے۔ ہم سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور 1122 کا دائرہ ہر شہر تک لے کر جائیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے جعفریہ الائنس کے وفد نے کراچی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ حکومت کے معاشی اقدامات سے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان جلد مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام میں عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات اور جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کی جائے گی۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ واقعے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں گوادر میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کولانچ پہاڑی اور بخشی کالونی کے کچی آبادی کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے اور فری ٹریڈ زون کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے مالکان کو معاوضے میں اضافے، گیلک روڈ متاثرین کو معاوضہ اور کولانچ کے مکینوں کو ہنگامی بنیادوں پر پانی کی فراہمی کی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ گوادر ماسٹر پلان کے تحت سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں کارروائی اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا۔
मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम कोयटा में शमूलियती तकरीब मुनाकिद हुई। सूबाई सदर शेख जाफर खान मंदुखेल, साबका स्पीकर राहिला हमीद दुर्रानी और मरकजी रहनुमा नईम करीम समेत पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। दीगर पार्टियों से मुस्ताफ़ी होने वालों की बड़ी तादाद ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करते हुए शमूलियत का ऐलान किया। सूबाई सदर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी आने वाला वक्त मुस्लिम लीग नून का होगा। कायद नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पुरआज़म हैं। सूबे के अवाम समेत अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून के काफिले में शामिल हो रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मुलकवाल में पाक फौज और महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के ताउन से मुफ्त वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जानवरों का मुआयना और इलाज किया गया। किसानों में जानवरों के लिए मुफ्त अद्वियात और मौसमी चारे के बंडल भी तकसीम किए गए। मवेशी पालने वाले किसानों ने कैंप के इनेकाद को सराहा है। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਚਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पाक आर्मी जो कैंप लाया साढ़े जानवरों वास्ते ये साढ़े वास्ते बहुत अच्छा और जानवरों की सेहत वास्ते बहुत अच्छा है। असी उम्मीद करते हैं कि इंदा भी ये कैंप जरा लगा रहा सी और साडा फायदा होता रहा। ये असी पाकिस्तान आर्मी का तुसी तो शुक्रिया मैं अदा करता हूँ जिन्हें कैंप लवाया। मुख्तलिफ बीमारियां गाय फुर्ती मुंह फुट दे नाल साडा काफी नुकसान होता। साडे जे जानवरों का इलाज होता साडा असी काफी नुकसान तो बच जाते हैं। कराची में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम DAE प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इन्नकाद हुआ। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर से, देखिए। 8 मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर प्रोग्राम के 1100 तलबा के तैयार करदा 290 प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए रखे गए। प्रोजेक्ट फेयर का इफ्तिताह सिंध बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर मसरूर अहमद शेख ने किया। उन्होंने तलबा के जदीद और मुनफरद प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा कि तमाम आइडियाज बहुत अच्छे और मुतासिर कुन हैं जो तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और महारत की अक्कासी करते हैं। वक्त का तकाजा है कि सनती शोबे के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। पाकिस्तान में भी बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान के बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है। जितने उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपको पता चल जाएगा कि उनकी जो है मतलब नॉलेज और उनकी स्किल कैसी है। इदारे के सरबराह शाहिद जमील ने कहा कि तलबा को नए तस्वुरात पर काम करना चाहिए। हमारे बच्चे अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को यहाँ शो कर रहे हैं और इस दफ़ा इस एग्जीबिशन में हमारे बच्चों ने 290 प्रोजेक्ट जो हैं डेमोस्ट्रेट किए हैं। तलबा का कहना था कि हम इंतहाई मुसरत महसूस कर रहे हैं कि हमारे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को सराहा गया और हमारी हौसला अफजाई हुई। हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारा क्लाइमेट डेटा, रेन डेटा, क्रॉप डेटा, सॉइल डेटा तमाम प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो DIY स्मार्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो हमने एक कोविड के टाइम के लिए हमने, अब कोविड तो गुजर गया लेकिन उस टाइम तक हमें हमारे जो पेशेंट्स थे उनको काफ़ी ज़रूरत थी वेंटिलेटर्स की। ये क्या मैं बेसिकली एक सोलर पावर ट्रैकर है, ये सनलाइट को डिटेक्ट करता है और ये इस तरीके से उससे मूव करता है। नुमाइश में तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की और स्टूडेंट्स की कोशिशों को सराहा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित की सेंट्रल लाइब्रेरी में जानिब काजी सेंट्रल एशिया कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया गया। गिलगित से नज़ाकत अली की रिपोर्ट देखते हैं। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल लाइब्रेरी में सेंट्रल एशिया जानिब काजी कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और वाइस चांसलर ने फीता काटकर कॉर्नर का इफ्तिताह किया। सेंट्रल एशिया कॉर्नर कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने किर्गिस्तान के सिफारत खाने के ताउन से कायम किया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने खिताब करते हुए किर्गिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कॉर्नर के कयाम से गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को सेंट्रल एशिया में आला तालीम, स्कॉलरशिप और जदीद दौर के तालीमी तकाजों के मुताबिक तालीम और तहकीक में मदद मिलेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर अताउल्लाह शाह ने किर्गिस्तान के सिफारत खाना और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में सेंट्रल एशिया कॉर्नर के कयाम से गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को सेंट्रल एशियाई ममालिक के तहजीब व तमद्दुन और सकाफत पर तहकीक समेत तलबा को अपने आला तालीम के उसूल के लिए स्कॉलरशिप्स ढूंढने में मदद मिलेगी। ये सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनके साथ हमारी तालीमी तहकीकी रिश्तों को इस्तवार करने में किरदार अदा करें। इस लाइब्रेरी में मैंने मौका दिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और यूथ को और स्टूडेंट को कि जानिब काजी के बारे में वो मजीद इंफॉर्मेशन मुतालिया कर सके, अपने मालूमात में इजाफा कर सके। जानिब काजी सेंट्रल एशिया के एक मशहूर मुस्लिम लीडर और काजी थे। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित।
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کی نیٹو رکنیت سے دنیا مزید غیر محفوظ ہو جائے گی۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے گئے لانگ بیرل میزائلوں نے نقصان ضرور پہنچایا ہے، تاہم اس سے میدان جنگ میں کوئی اہم تبدیلی نہیں ہوئی۔ صدر پوٹن نے کہا کہ گزشتہ 10 دن میں روس نے 311 ٹینک تباہ کیے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لیپرڈ اور دیگر مغربی ساختہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے کی نئی ترسیل یوکرین کے لیے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دے گی۔ اناج کی ترسیل کے معاہدے میں توسیع سے متعلق صدر پوٹن نے کہا کہ اگر ہم سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں تو روس سمجھوتے میں توسیع کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب یوکرینی علاقوں پر روس کے تازہ حملوں میں مزید 3 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام نے دارالحکومت کیف پر روس کے متعدد ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے فضائی دفاع سے 20 ڈرون تباہ کیے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں ایمرجنگ ایشیا کپ کے حوالے سے۔ 8 ملکی ایمرجنگ ایشیا کپ میں دفاعی چیمپئن پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز۔ اپنے پہلے میچ میں نیپال کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں نیپال کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 37 اوورز میں 179 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی طرف سے شاہنواز دھانی نے 5 اور محمد وسیم نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان شاہینز نے 180 رنز کا مطلوبہ ہدف 32.5 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ طیب طاہر نے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہنواز دھانی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیسٹ سکواڈ نے گول میں پہلے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ کرکٹرز نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی اور کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 جولائی سے گول میں شروع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے سری لنکا نے 16 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا۔ دیموتھ کرونا رتنے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائی جائے گی۔ فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو ٹیسٹ کرکٹ میں وکٹوں کی سینچری مکمل کرنے کے لیے 1 وکٹ درکار ہے۔ وہ اب تک 25 ٹیسٹ میچز میں 99 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ مجھے شوق ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا اور مجھے مزہ بھی آتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، اور 1 وکٹ ہوئے ہوں اس میں 100 وکٹ پاکستان کے لیے جو بڑی اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ اور ایسے آئے گی۔ اور پریکٹس کافی اچھی تھی ہماری کراچی میں، کیونکہ میں وائڈ بال کرکٹ کھیلتے وہ آ رہا ہوں تو آسان نہیں تھا اسٹریٹ اوے، بٹ یوز ٹو آرام سے اپنے آپ کو کیا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ پریمیئر لیگ کا مقصد ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں سندھ پریمیئر لیگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کرکٹر کسی صوبے کا نہیں، پاکستان کا کھلاڑی کہلاتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ سندھ پریمیئر لیگ کے برانڈ ایمبیسڈر شاہد آفریدی نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم دنیا کی ہر ٹیم کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چیئرمین پی سی بی کو کم از کم 3 سال کے لیے ہونا چاہیے۔ پی سی بی میں کرکٹرز کا رول ہونا چاہیے کیونکہ کرکٹ چلانا کرکٹرز کا کام ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق نے کہا کہ لیگ کا حصہ ہونے پر خوشی ہے، ایونٹ کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ تیونس کی اونس جابر اور جمہوریہ چیک کی مارکیٹا ونروسوا ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں ویمن سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ لندن میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اونس جابر نے بیلاروس کی ایریانا سیبلانکا کو شکست دی۔ اونس جابر نے پہلا سیٹ 6-7 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور اگلے 2 سیٹ 6-4 اور 6-3 سے جیت کر مسلسل دوسری مرتبہ چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنائی۔ خبر شامل کریں گے بھارت سے، جس کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ موسلادھار بارشوں اور ہریانہ کے ہتھینی براج سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے دریائے یمنا میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے نئی دلی کے کئی علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزراء کی رہائش گاہیں، سپریم کورٹ، لال قلعہ اور سیکریٹریٹ بھی سیلابی پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران
ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران خطہ پوٹھوار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں۔ دالبندین میں 46، نوکنڈی 45، فیصل آباد 37، ملتان میں 39، جبکہ سرگودا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 39، لاہور 35، کراچی میں 34، پشاور 38، جبکہ کوئٹہ میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔